میں بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری پھپھو نے میری پرورش کی تھی۔ پھپھو نے شروع سے مجھے بتا دیا تھا کہ میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس وجہ سے میرے والد یہ صدمہ نہ سہ سکے اور ان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ بیوی کی بے وفائی میرا بھائی سہ نہ سکا اور مرنے سے پہلے مجھے تمہاری حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری سونپ گئے۔ پھپھو میرے سامنے باتیں دہراتی رہتی تھی۔ اپنی ماں کے متعلق اس قسم کی تلخ حقیقت جاننے کے بعد میں اداس ہو گئی تھی۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی جب میری پھپھو نے مجھے اس حقیقت سے آشنا کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یہی رودات سناتی تھی۔ بنا دیکھے ہی مجھے میری ماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ان کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتی تھی، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ تنہائی میں اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا، میرے والد کے ساتھ اور میرے ساتھ، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملتا کیونکہ میں تو خود کلامی کرتی تھی جسے سننے والا خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ ویسے تو میں بچپن سے ہی پیاری تھی، لیکن 12 سال کی عمر سے میں کچھ زیادہ ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر وقت میرا دل کرتا تھا کہ میں سوتی رہوں۔ صحت کی خرابی کے باعث میں صحیح طریقے سے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی۔ مشکل سے ہی میں نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد تو دن بدن میری صحت گرتی چلی گئی۔ میری پھپھو میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر میں میری پھپھو، ان کے شوہر، میں اور ان کا بیٹا رہتے تھے۔ میری سہیلی نے مجھے کہا کہ میں کھانا بنانا سیکھ لوں، شادی کے بعد کام آئے گا، لیکن میری صحت کو دیکھتے ہوئے میری پھپھو نے مجھے کچن میں پاؤں رکھنے ہی نہ دیا۔ میری نیند میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھپھو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی، لیکن میرا مسئلہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھپھو مجھے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے میرا علاج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر مجھے ایک انجیکشن اور ڈھیر ساری دوائیاں دے دیتا اور انہیں لینے کے بعد میں دن رات سوئی رہتی تھی۔ دوائیوں کی وجہ سے میرا معدہ خراب ہونے لگا تو میں نے دوائیاں لینا بند کر دیں، لیکن پھپھو سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ پھپھو کو میں نے کبھی شک نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے دوائیاں کھانی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ میں اپنی روز کی دوائی گلی میں پھینک دیتی تھی اور پھپھو سے کہتی تھی کہ آج کی دوائی کھا لی ہے۔ پھر ایک ماہ کے اندر میں نے محسوس کیا کہ جب سے میں نے دوائیاں بند کی ہیں تب سے میری نیند میں کافی کمی آ گئی ہے۔ میری صحت جو تیزی سے گر رہی تھی، دوائیاں بند کرنے کی وجہ سے اس میں کافی فرق آ گیا تھا۔ صرف ایک ماہ کے اندر ہی مجھے لگا شاید یہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے یا پھر ان دوائیوں سے مجھے افاقہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی پھپھو کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ غصہ کریں گی کہ میں نے دوائیاں کیوں چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں میری صحت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ وہ ہر وقت میرے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور سوچ سوچ کر انہوں نے خود کو ہلکان کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو پھپھو کو مجھ پر اس قدر پیار آ جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر مجھے کھلاتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ پھپھو کا بیٹا آریان مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، یعنی کہ 15 سال کا تھا۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے، لیکن جب بھی کوئی عورت میرا رشتہ لے کر آتی، میری پھپھو اسے تمام حقیقت سے آشکار کر دیتی۔ بہن، میں کسی سے کچھ چھپانے کی قائل نہیں ہوں۔ آخر ہم نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میری بھابھی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی کا صدمے سے انتقال ہو گیا، اور تب سے لے کر آج تک لاریب کو میں نے پالا ہے۔ آپ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں تو اس لیے آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بتا رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو یہ باتیں میری پھپھو ایک خاتون سے کر رہی تھی جو میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون بولی، معاف کرنا بہن، ہم ایسی ماں کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتے، ہماری طرف سے معذرت۔ ہم تو آپ کا خوبصورت گھر دیکھ کر آئے تھے، لیکن ہمیں بھی زمانے کو منہ دکھانا ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس خاتون نے کہا اور رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ ہر 3 ماہ بعد میرا کوئی رشتہ آتا اور اسے یہی جواب دیا جاتا، اور پھر وہ رشتہ پلٹ کر آتا ہی نہیں۔ مجھے میری پھپھو کی سچائی نے بہت متاثر کیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ وہ کسی سے باتیں چھپاتی نہیں ہیں، مگر مجھے دکھ بھی بہت ہوتا تھا۔ میں تنہا بیٹھ کر بہت زیادہ روتی تھی کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا تھا، اور آج اس کی وجہ سے میرا کہیں پر رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ لوگ ہمارے بڑے گھر کو دیکھ کر آتے تھے، لیکن مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ وہ لوگ بڑے سے بڑے جہیز کی امید لگا کر آتے تھے، سوچتے کہ گھر اتنا بڑا ہے تو لڑکی کو کیا کچھ نہیں دیں گے، مگر میری پھپھو مجھے یہی کہتی، لاریب بیٹا،
हम इतना जहेज कहाँ से लाएं? हमारे पास तो इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे फूफा भी मामूली सी नौकरी करते हैं। हमारी आमदनी नहीं है कि हम इनको गाड़ी जहेज दें। फूफो ने एक दिन अफसुर्दा होकर मुझसे कहा तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो होगा वो होकर रहेगा, आप परेशान ना हो। और जो लोग जहेज मांगते हैं उन्हें तो लानत देनी चाहिए, क्योंकि जहेज लेना और देना दोनों लानत है। और मैं हैरान होती हूँ कि कैसे लोग खुशी खुशी लानत मांग लेते हैं। मैंने उनके गिर्द बाहें डालते हुए कहा था कि वो खुश हो सकें। उनकी उदासी दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तो हम एक दूसरे शहर में रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल से ज़्यादा नहीं थी और इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं। फिर हमने शहर और घर तब्दील कर लिया था और अब यहाँ बड़े बंगले में रह रहे थे, लेकिन इस बंगले के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन अचानक मेरे लिए ऐसा रिश्ता आया जिन्होंने जहेज की कोई डिमांड ना की थी। हमें कुछ नहीं चाहिए जहेज के नाम पर, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आप हमें लड़की दे दें, जोड़े भी हम खुद ही इसके बना कर देंगे। मैं किचन में थी और वो खातून बोल रही थी जो मेरा ताज़ा तरीन रिश्ता लेकर आई थी। मैं हैरान थी, मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि मेरे इतने रिश्ते आते, लेकिन इस बंगले को देखकर लोग बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर आते और खाली हाथ लौट जाते थे। ये पहली खातून थी जिन्होंने जहेज की डिमांड नहीं की थी। ये बात मेरी फूफो को बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत फूफो ने इस औरत को भी बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, कोई बात नहीं बहन, एक के किए की सज़ा तो अल्लाह भी दूसरे को नहीं देता, तो हम क्यों इस बच्ची को इसके माँ के किए की सज़ा दें। उस औरत ने कहा तो मैं हैरान हो गई कि क्या दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। 2-3 दफ़ा आने के बाद मेरी फूफो ने उनको हाँ कर दी और मुझे ये भी बताया कि वो लोग दूर कहीं गांव में रहते हैं। उनकी अपनी काफ़ी ज़मीनें हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं, यानी काफ़ी मालदार लोग थे। बस शहर में नहीं रहते थे, लेकिन गांव में उनका बहुत रोब था, यानी कि वो गांव के अच्छे खासे अमीर लोग थे। दूर जाने पर मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन फूफो ने मुझे दिलासा दिया, बेटा जो लोग करीब रहते थे वो तो बहुत बुरे निकले, ये भले दूर हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी फूफो ने मुझसे कहा तो मैं मुतमईन हो गई थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। निकाह के बाद रुखसत होकर मैं गांव में आ गई। मेरी फूफो भी मेरे साथ थी। वो मेरी शादी पर बहुत खुश थी। जैसे ही निकाह हुआ तो सब बातों में लग गए। गांव में इतनी ज़्यादा रौनक थी जिसकी कोई हद ना थी। गांव वाले बेहद खुश थे। मैंने अभी तक अपने शौहर को नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वो बहुत खूबसूरत हैं। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था, क्योंकि मेरी ससुराली मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान में हमारी रूहें एक साथ थीं और ज़मीन में आकर बिछड़ गई थी और यहाँ आकर मिल गए थे। वो लोग इस तरह का रद्द अमल जाहिर कर रहे थे और मैं उनके रद्द अमल पर बेहद हैरान थी। मैं अपने दुल्हे का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मेरी फूफो कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने कमरे को कुंडी लगाई। मैंने देखा कि मेरी फूफो हवास बाख्ता है। क्या हुआ फूफो, खैरियत तो है? मैंने उन्हें इस कदर परेशान देखा तो पूछा। वो घबराती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। सुनो लारैब, जैसे ही तुम्हारा शौहर अंदर दाखिल हो तो उसे पहली बात यही करना कि तुम उससे तलाक चाहिए। मेरी फूफो ने घबराहट के बारे में बोला तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था। उनकी बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे और ख़तरे की घंटी मेरे लाशऊर में बजने लगी। यानी कि मुझे लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो गया है। क्या हुआ फूफो, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बमुश्किल ही मैंने ये अल्फाज अदा किए थे। मेरा हलक परेशानी से खुश्क हो गया था। अरे बेटा, तुम्हारा दूल्हा ठीक आदमी नहीं है, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकेगा। और दूसरा, ये लोग बहुत बुरे और लालची लोग हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। उन्होंने जहेज़ वगैरह इसलिए नहीं मांगा कि हमारी तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर सकें। मैं तुम्हारे ज़रिए ब्लैकमेल करके उन लोगों की यही प्लानिंग है कि हमारा घर हत्या लेंगे और हमारी फैक्ट्री पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। फूफो ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए परेशानी से कहा, लेकिन फूफो, हमारी तो कोई फैक्ट्री नहीं है। मुझे फूफो की फैक्ट्री वाली बात ने हैरान कर दिया था। तुम्हारे बाबा का एक प्लॉट था जिसे हमने बेचकर छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी जिसे तुम्हारे फूफा चलाते हैं, लेकिन इस बात को हमने राज रखा था क्योंकि हमारे बहुत से दुश्मन हैं। तुम्हें भी आज बता रही हूँ, फूफो ने राजदारी वाले अंदाज में कहा। लेकिन फैक्ट्री वाली बात राज है तो इन लोगों को कहाँ से मालूम हो गई? मैंने हैरत से पूछा।
ये सोच कर तो मैं भी परेशान हो गई हूँ कि इन लोगों को हमारे इतने राज कैसे मालूम हो गए। ये सब इनका प्लान था। फूफो ने कहा, बस मेरे बच्चे, तुम अब ये करना है कि तुम्हें तलाक का मुतालबा करना है और सख्ती से करना है, वरना तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तुम इस शख्स से तलाक लो, मैं आज ही तुम्हें वापस ले जाऊंगी। फिर हम लोग रोपोश हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। अब उन्होंने हमें ताड़ लिया है। इस वक्त बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। शायद दूल्हा आ रहा था और उसके दोस्त गाना गाते जा रहे थे। लगता है तुम्हारा शौहर आ रहा है, मैं जा रही हूँ और जैसा मैंने कहा वही करना और उसकी एक ना सुनना। ये लोग बहुत ही धोखेबाज हैं। फिर फूफो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर कमरे में आ गए। वो मेरे करीब आकर बैठ गए तो खुशबू का एक झोंका सा मुझे महसूस हुआ। मैंने अपनी लरसती हुई पलकें उठाकर उन्हें देखा तो वो बेहद हसीन थे। यूं कहें कि मर्दाना वजाहत का शाहकार थे और मैं उन्हें देखती ही रह गई। न जाने कब से मुझे तुम्हारी तलाश थी और देखो आज किस्मत ने हमें मिला ही दिया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो मेरा दिल डूब कर उभरा। इतने हसीन शौहर को छोड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे वही करना था जो मुझे फूफो ने कहा था। आप मेरे करीब मत आए, मुझे तलाक चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्यों? उन्होंने मुस्कुराते हुए शरीर अंदाज में कहा। तो मुझे हैरत हुई। मुझे लगा वो गुस्सा करेंगे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दूं। बस मुझे तलाक चाहिए, आप अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दें। मैंने हिम्मत करके कहा तो इस बार उनका कहका बुलंद हुआ था। उनका कहका सुनकर मेरी रूह जैसे कांप गई थी। मैं समझ गई थी कि अपने मकरूह इरादों में कामयाब हो गए हैं। यकीनन ये तलाक की पट्टी तुम्हें तुम्हारी फूफो ने पढ़ाई है। मेरे शौहर ने ये अल्फाज कहे तो मैं फटी फटी आंखों से उनको देखने लगी और सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता चल गया। यकीनन उन्होंने फूफो और मेरी बातें सुन ली होंगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तलाक चाहिए। इस बार मैंने सख्ती से कहा। वो अपनी जगह से उठे और अलमारी की तरफ गए और वहाँ से एक तस्वीर निकाल कर मेरे आगे बढ़ाई। इस लड़की को जानती हो? उन्होंने तस्वीर मुझे थमाते हुए कहा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो मेरी बचपन की तस्वीर थी जिसमें मेरी उम्र 4 साल थी और इन्हीं कपड़ों में एक तस्वीर मेरे अपने पास मेरे घर में भी पड़ी हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद था ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई। मैंने उनकी तरफ देखते हुए हैरत से पूछा तो वो फिर मेरे सामने बैठ गए। तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो और ये औरत जिसे तुम अपनी फूफो कह रही हो, ये औरत धोखेबाज और तुम्हारे माँ बाप की नौकरानी थी। ये औरत और उसका शौहर मेरे भाइयों के घर में दोनों नौकर थे। तुम मेरे मामू की बेटी हो, इस औरत की भतीजी नहीं हो। और अब जबकि तमाम हकीकत इस औरत को मालूम हो गई है तो ये तुमसे तलाक का मुतालबा करने को कह रही है। उन्होंने कहा तो मैं हैरान हो गई। फिर उन्होंने बताया कि सज्जाद मेरे मामू थे और अनीसा बेगम मेरी मामी। मामू अपने वालिदैन से लड़कर शहर चले गए थे और वहीं सेट हो गए थे। फिर एक दिन तुम तीनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि कार के हादसे में दोनों का इंतकाल हो गया और तुम जिंदा बच गई। ये औरत और उसका शौहर तुम्हें लेकर फरार हो गए। हम गांव में रहते थे। उस वक्त गांव से शहर राब्ता करना बहुत मुश्किल था। महीनों में एक ख़त लिखकर राब्ता होता था। पूरा महीना हमें मालूम ही नहीं हुआ इस हादसे के मुतल्लिक। जब मामू की कोई खबर ना आई तो हमारे रिश्तेदार शहर चले गए कि पूरे महीने में उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि घर बिक चुका है और कार हादसे में उनका इंतकाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा मालूम करने पर पता चला कि तुम जिंदा बच गई हो, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं था। हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि हम इस चालाक औरत और इसके मक्कार शौहर को नहीं जानते थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पता चला कि वो लोग तुम्हें लेकर फरार हो गए हैं और घर भी बेच दिया है। घर बेचने वालों को इस औरत ने ये बताया कि उसका भाई सज्जाद फौत हो चुका है और उसकी जायदाद की वारिस उनकी बेटी है जो इनके पास है। तुम्हारी तस्वीर वगैरह दिखाकर इन लोगों ने घर बेच दिया। सब ने यकीन कर लिया कि तुम्हारी फुप्पो है और उनके सिवा तुम्हारा कोई नहीं, और बड़ी होकर तुम उनकी जायदाद की वारिस होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें छुपा दिया। 15 साल लगे हम लोगों को तुम्हें ढूंढने में। मेरे शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। आप झूठ बोल रहे हैं मेरी जायदाद हथियाने के लिए। ये सब आपका प्लान है जो आपने ये झूठी कहानी गढ़ ली है। मैंने उनसे फ़ौरन कहा। मेरा दिल इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोले, मैं सच कह रहा हूँ। हमें पिछले कुछ माह से पता चल गया था
कि तुम उनके कब्जे में हो और ये लोग तुम्हें रोज़ाना नशे की अद्वियात और इंजेक्शन लगाते हैं। मगर हमें ये सब प्लान करना पड़ा, वो इसलिए कि कहीं ये लोग तुम असल वारसों के लिए तुम्हें मार ही ना दें। फिर उनके मोबाइल पर बेल बजने लगी। कॉल सुनने के बाद वो बोले, चलो बाहर पुलिस आ गई है और अब तुम्हारी फुप्पो पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देंगी। उन्होंने कहा और मुझे बाहर ले गए तो मैंने देखा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। फुप्पो ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया था और मैं हैरान थी कि इतने सालों तक ये औरत मेरी मरी हुई माँ पर इतने इल्ज़ामात लगाती रही है। इस औरत ने मेरी पाकबाज माँ पर कितना कीचड़ उछाला है। मुझे इससे नफरत सी महसूस हो रही थी और बाद में पता चला कि जो दवाई वो मुझे दे रही थी वो नींद की दवाइयाँ थी, इसलिए मैं सारा दिन सोती रहती थी। मुझे काम काज भी इसलिए नहीं सिखाया उन्होंने, जो रिश्ता आए वो वापस चला जाए। उनकी मजबूरी ये थी कि तमाम जायदाद के कागजात मेरे नाम पर थे, मेरा कोई रिश्ता ना आए। मेरे वालिद को इल्म हो गया था अपनी मौत का, इसलिए उन्होंने वकील को बुलाकर मेरे नाम तमाम जायदाद कर दी थी, जो 20 साल की उम्र में मेरे नाम पर मुंतकिल हो जानी थी। इसलिए उन्होंने ये सब किया और मुझे 20 साल तक जिंदा रहने दिया, वरना शायद कब का मार चुके होते। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले मुझसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे, लेकिन उन्होंने उसके मुतल्लिक मुझे कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा कि बाद में बताएंगे। ये वही जायदाद के कागजात थे जो उन्होंने अपने नाम करवा लिए थे और फिर मुझे शादी करवा कर घर से निकालना चाहा। वो लोग शायद जान से मारने वालों में से नहीं थे, सिर्फ कब्जा करने वालों में से थे, वरना कोई और होता तो मुझे मार देता। हर इंसान की अपनी हदूद होती है और इनकी हद इतनी ही थी। जो भी था, खुदा ने मेरी मदद की और अब मैं अपने असल वारसों के पास आ गई थी और मेरी सारी जायदाद भी दोबारा मेरे नाम मुंतकिल हो गई थी, जो उन्होंने धोखे से अपने नाम करवाई थी। मेरी सास मुझसे इतना प्यार इसलिए जता रही थी क्योंकि मैं इनके मरहूम भाई की बेटी थी। आज सब मुझसे बेहद प्यार करते हैं, खासकर मेरे शौहर। खुदा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेरे वारसों से मिला दिया और मुजरिमों को उनके किए की सज़ा मिल गई।